Morning students, myself Tandal Alpa. Now onwards, you have to watch a video. Okay. So first of all, in our exam, there are chapters are chapter 4, 5, 6 and 7. Okay. Chapter 4 more on Microsoft Word 2007. Then working with styles and object. Chapter 6 working with tables, and next is Microsoft PowerPoint 2007. Okay, so let we start revision from the chapter 4 more on Microsoft Word 2007. First of all, we have to open Microsoft Word. Now here Word 2016 is their updated version. So let me learn. Blank document we have to select first. Now our first topic is copy formatting to another selection. मान लेते हैं I have typed hello and यहाँ पे मैं फॉर्मेटिंग कर रही हूँ, बड़ा किया, बोल्ड किया, will change the font type to font size to this formatting I have done with hello. Now will write standard 5. अभी यहाँ पे मैंने इतना फॉर्मेटिंग किया, अगर मैं टाइप कर रही हूँ तो यही सेम आएगा, ठीक है. Now what I will do, will selection the normal selection and 10. So whatever I have written small. अभी यहाँ पे मैं लिख रही हूँ standard 5. अभी ये सेम फॉर्मेट मुझे सब पर क्लिक करना पड़ेगा कि whatever font I have selected, size. So for that we have option format painter कि अगर हमको सेम फॉर्मेट यहाँ पे चाहिए तो we can do. First of all, for that select hello, format painter, standard 5. Again we'll do hello, format painter. Okay, standard 5 same. I hope you understand. Now applying superscript and subscript. अभी देखिए, sometime we have to write H2O. अभी ये 2 मुझे नीचे चाहिए. What I have to do? To font group में जाना है आपको. Afterwards यहाँ पे देखो subscript है. Subscript means जो आपकी नॉर्मल अलाइनमेंट है उससे थोड़ा नीचे. ओके, सो विल अप्लाई. आ गया. फिर सम टाइम आई हैव टू राइट जैसे 2:3. 3 को ऊपर करना है. सेलेक्ट अ पर्टिकुलर टेक्स्ट, फॉन्ट ग्रुप, सुपरस्क्रिप्ट एंड ओके. दिस इज कॉल्ड सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट. ये है सबस्क्रिप्ट एंड ये है सुपरस्क्रिप्ट. ओके, सो now if you want to find out some letter or word, अगर आपको कोई वर्ड ढूंढना है डॉक्यूमेंट में से तो how to find out. Now we'll write radiant. We'll copy radiant so many sections. Control C. कॉपी पेस्ट करने के लिए कंट्रोल सी, कंट्रोल वी. अलग अलग पेज में मैंने रेडियंट लिख दिया है. ये तो मैं आपको सिखाने के लिए वर्ड आई हैव टाइप. बट इफ एनी डॉक्यूमेंट इज हाउ टू फाइंड आउट, सो यू हैव टू फाइंड आउट. सो क्लिक ऑन फाइंड. इट इज अवेलेबल इन होम टैब. क्लिक ऑन फाइंड एंड राइट ओवर हियर रेडियंट. तो जहां पे भी रेडियंट होगा आपको वो दिखाएगा. देखो अलग अलग पेज पे नीचे देखो पेज नंबर चेंज हो रहे हैं. यहाँ पे देखिए आप
will show you. सी यहाँ पे जैसे ही 4 5 अभी मैं अगेन नेक्स्ट कर रही हूँ. ओके देखो अभी 5 पे आया है, यहाँ पे नहीं है. गॉट इट स्टूडेंट्स? अलग अलग पेज पे आपको लेके जाएगा. ठीक है, क्लियर? नाउ want to replace. How to replace? मानो रेडियन की जगह पे आपको स्कूल लिखना है, तो यहाँ पे फाइंड पहले क्या करना है? रेडियन. फिर क्या रिप्लेस करना है? स्कूल. रिप्लेस ए 1 by 1 रिप्लेस करना चाहते हो या रिप्लेस ऑल करना चाहते हो? दैट यू हैव टू सेलेक्ट. विल सेलेक्ट all. Now close. Look on the document. Look at the document. School replace हो गया है. When this type of things required, when you are doing document typing and बहुत सारे typing होते हैं, आपको ये use होता है. Now replacing text done, finding a text done. Okay, now we'll do page formatting. How to do page format? For page format, what we have to do? Look at यहाँ पे पैराग्राफ टैब है, अगर आप देख सको. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल creating header and footer. How to create? Select insert tab. यहाँ पे देखिए header and footer is there. How to apply? Header. Header means what? कि आपके पेज की header में आपको क्या रखना है? Okay, I want. यहाँ पे दोस्तों there are so many types of header. We can select any one of them. Will select this one. Okay, अभी देखो each and every I have selected once. See, each and every page header is there. If you want to see all pages together, multiple pages, look. 1, 2, 3, 4, 5, each and every pages. Again, 100% will come. View will be changed. Okay. Now, header we have created. Now, I have to create footer too. तो footer पे मुझे चाहिए page number. So, which type page number of you want? See, I want. See, page 1 of 1 like this. I want. यहाँ पे देखो स्पेसिस है, आप यहाँ पे रेंजेस दे सकते हो. ठीक है, लेस देना तो जगह कम जाएगी. Got it? It's done now. So we have created header and footer both. See, whenever you create this, right now what I have done header and footer. अभी जब भी आप कोई भी सिलेक्शन दोगे, यहाँ पे डिजाइन मेनू ओपन हो जाएगा अकॉर्डिंग टू वट एवर यूर डूइंग. जैसे हेडर का करेंगे तो हेडर का डिजाइन मेनू आएगा, फुटर करोगे तो फुटर का डिजाइन ऊपर. मीन्स व्हाट आई हैव वट एवर ऑप्शन यू हैव सिलेक्टेड. जैसे इंसर्ट मैं पिक्चर्स करूंगी, मान लेते हैं, तो ये पिक्चर्स का अभी टैग कुछ और करती हूँ कि पिक्चर्स इसमें नहीं है, ये कर देती हूँ. ओके, ठीक है. अभी ये एक मैंने स्मार्ट आर्ट दिया है. तो जैसे मैं सिलेक्ट करूंगी, देखो इसके डिजाइन आ जाए. दैट आई वांट टू एक्सप्लेन कि व्हाट एवर यू सिलेक्टेड उसके यहाँ पे डिजाइन मेनू अलग अलग आएंगे, तो ये फिक्स्ड नहीं है. व्हाट एवर सिलेक्टेड ओवर हियर दैट विल बी tab will be here. Okay, we'll delete now. Now I hope you understand page number, header, footer we have done. If you want to
see together multiple pages. Look, header is also there, when and footer is also there. Now again अगर आपको नॉर्मल मेनू में जाना है 100 पेजेस करो, वापस होम टैब, ठीक, ये आपका नॉर्मल पेज आ गया है, ठीक है। नाउ इंसर्ट ए कॉलम एंड कॉलम ब्रेक। आप कॉलम एंड कॉलम ब्रेक कैसे कर, पहले तो कॉलम क्या है, व्हेन यू हैव टाइप अ डॉक्यूमेंट इज विजिबल ऑन द स्क्रीन इन सिंगल कॉलम। अभी यहाँ पे आप जो भी लिख रहे हो सिंगल कॉलम में डिवाइडेड लिखा जाता है, ये सिंगल कॉलम है, व्हाटएवर हम जो बाय डिफॉल्ट सिंगल कॉलम। अगर मान लो मैं यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिख देती हूँ, 1 2 3, ओके। अभी ये बाय डिफॉल्ट इट इज इन वन कॉलम। नाउ you want to break in more than one column, how to do? So we'll select layout, here columns, select columns options 1 2 और 3। if इनमें से कोई आपको कॉलम एंड ब्रेक सेलेक्ट करनी तो यू कैन सेलेक्ट फॉर मी, अदरवाइज मोर ऑफ कॉलम्स में जाके करना है। अभी मैं 3 कर देती हूँ, सो इट इज डिवाइडेड इनटू 3 कॉलम्स। गॉट इट? विल डू अगेन, ओके। बिकॉज साइज बड़ी थी, पहले क्या हुआ था कि साइज बड़ी थी तो ये उसको जगह कम पड़ रही थी, इसलिए वो 2 कॉलम्स में डिवाइड हुआ। अगर आप सफिशिएंट स्पेस नहीं होगा तो वो अपने आप व्हाटएवर अप्लाइड वो कर देगा। अगर आपको ठीक से करना है तो यहाँ पे साइज की नॉर्मल रखनी पड़ेगी, ठीक है। कॉलम एंड ब्रेक हो गया। नाउ इंसर्टिंग, हाँ कॉलम एंड ब्रेक इज डन। Now the next topic is working with tabs. What is tab? First of all I want to ask tab. जैसे यहाँ पे पेज लेआउट, ये लेआउट टैब है, डिजाइन टैब है, इंसर्ट टैब है, ओके। नाउ व्हेनेवर यू सेलेक्ट, जैसे अभी मैं लेआउट कर रही हूँ, सो ये लेआउट का टैब सेलेक्ट होता है। यहाँ पे आप स्पेसिंग कम ज्यादा कर सकते हैं। लुक, ये दोनों लाइन के बीच में स्पेसिंग, जैसे बिफोर स्पेसिंग मैं मैक्सिमाइज कर देती हूँ, ठीक है। देखो हो रहा है, ज्यादा स्पेस बढ़ रहा है। अभी आफ्टर स्पेसिंग इस लाइन के बाद वाली इंक्रीजिंग, गॉट इट। अभी लेफ्ट में आपको ज्यादा चाहिए, अभी मैं मोर कर रही हूँ तो आपको समझ में आएगा, हो रहा है। सो ये लेफ्ट साइड की है और ये राइट साइड की, गॉट इट। दिस इज टैब। नाउ वांट टू शो यू वन मोर थिंग, पैराग्राफ में जाना है, हियर टैब्स इज आल्सो देयर। सो ये क्या है, बाय डिफॉल्ट टैब स्टॉप यहाँ पे 1.27 है। अभी देखो यहाँ पे मेरा कर्सर है, विल प्रेस टैब की, तो ये मोर देन वन स्पेस लीव कर रहा है। हाउ टू सी, लो अभी देखो टैब, यहाँ से देखो मोर वन स्पेस से ज्यादा छूट रहा है, राइट। सो यू कैन सेट टैब्स, अभी 1.27 है, यहाँ से हम ज्यादा कम कर सकते हैं। अभी मान लेते हो मैं यहाँ पे दे देती हूँ 0.2, पॉइंट नहीं करती हूँ, 1.27 है, 4 कर देती हूँ। नाउ सेट, अभी देखो टैब 4 स्पेस में आगे जो हुआ था कर रही थी उससे ये ज्यादा हो रहा है, गॉट इट। सो यू कैन सेट टैब्स फ्रॉम हियर, सॉरी पैराग्राफ में टैब्स। अभी ये आप निकाल भी सकते हो, सेलेक्ट करो एंड क्लियर। सारे क्लियर करने तो क्लियर और सारे निकल जाएंगे, ओके। नाउ इंडेंटिंग और टेक्स्ट मीन्स क्या, अभी मान लो तो मैं यहाँ पे विल टाइप समथिंग,
See, I have typed something. Now, don't look at the spelling, whatever mistake is there. Now, how to apply indent? For that, you have to first select the paragraph. For indenting the text, you have to click increase indenting. Look, यहाँ पे जैसे ही ये डिक्रीज है, ये इंक्रीज है, देखो हो रहा है चेंजेस, ये डिक्रीज, गॉट इट। ये क्या है, इंक्रीज एंड डिक्रीज इंडेंटिंग द टेक्स्ट। नाउ स्टार्टिंग अ पैराग्राफ स्पेसिंग, हाउ टू डू? फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिक ऑन पैराग्राफ टैब। नाउ हियर इंडेंट एंड स्पेसिंग इज देयर। यहाँ पे अलाइनमेंट आपको कौन सा रखना है, सेंटर, राइट। अभी मैं राइट करके दिखाती हूँ तो ही आपको पता चलेगा कि क्या चेंजेस हुए हैं। अभी इंडेंट फ्रॉम लेफ्ट साइड आपको कितना सेंटीमीटर चाहिए, विल अप्लाई 0.5, यहाँ पे भी मैं 0.5 कर देती हूँ, ठीक है। अभी स्पेसिंग आपको कितनी चाहिए बिटवीन द लाइंस, तो मुझे यहाँ पे ज्यादा कर देती हूँ तो आपको समझ आएगा, और कुछ नहीं, ओके। नाउ अभी यहाँ पे सेट एज डिफॉल्ट, क्योंकि जो भी आप अप्लाई कर रहे हो वो डिफॉल्ट सेट हो जाए, बट वो हमें नहीं करनी क्योंकि हमने यहाँ पे ज्यादा किया। नाउ ओके, देखो whatever the space given by me, changes given by me, it is applied now. So it is called paragraph spacing. Now setting a margins. What is the margins? जब भी हम टाइप कर लेते हैं डॉक्यूमेंट, ओके, तो हमको मार्जिन सेट करनी होती है कि जब वो प्रिंट करके निकले तो वो कैसा होगा, ठीक है। आपको ये मैं एक पेज पे जो टाइपिंग टैक्स है वो ही करके दिखाती हूँ, विल अंडरस्टूड बेटर। ये फॉन्ट बड़े कर देती हूँ, ठीक है, और उसको लेफ्ट अलाइनमेंट कर देती हूँ, एंड इट शुड बी 1 लाइन, ओके। नाउ ये मेरा एक मान लो एक पेज है। नाउ मुझे सेटअप कैसे करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू गो लेआउट। इन लेआउट यहाँ पे मार्जिन है, बाय डिफॉल्ट आपको ये नैरो, नॉर्मली वो बाय डिफॉल्ट होता है और आपको करना है नैरो। फिर भी मानो देखो ये जगह यहाँ पे टॉप साइड लेफ्ट साइड अगर ज्यादा जा रही है, जैसे यहाँ पे देखो, अगर प्रिंट करते हैं, आपको प्रिंट करेंगे तो आपको पेज कैसा लगेगा, आपको लग रहा है कि देखो यहाँ पे बहुत स्पेस जा रही है, यहाँ पे ऊपर नीचे नहीं जानी चाहिए, तो व्हाट यू कैन डू, मार्जिन पे जाकर सेट कर सकते हो, मार्जिन नैरो की जगह पे कस्टम, एंड यहाँ पे 127 की जगह है 0.5, टैब की प्रेस करो 0.5, 0.5, 0.5, it is applied. Now look, will show, देखो ये सब जगह निकल गई ना। सो ये है सेटिंग मार्जिन्स, ओके। एंड आपको ये अगर देखना है तो कैसे नोटिस करें, यहाँ पे देखो, यहाँ पे रूलर है, दिख रही है रूलर, पहले कितना था अभी ये कितना स्पेसिंग हो गया। यहाँ से भी आप मार्जिन सेट कर सकते हो डायरेक्टली हैंगिंग करके, देखो हो रहा है, ये ऊपर का है, गॉट इट। यहाँ से भी आप कर सकते हो ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप, गॉट इट स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड, ओके। नाउ I hope कि all probably all things are done in this chapter. हाँ, one more thing, यहाँ पे size है, you have to select size A4. But हाँ, if you know कि whatever printer you having at time, तो आपको पता है कि ये later page है या कि ये 5 page है, तो you can select that also. Okay. And one more thing, orientation हमको portrait landscape, landscape means horizontal way में आपका देखो, आप print करके देख सकते हैं, ये page horizontal हो गया है, ठीक है। So whatever you want, you can select from here. Okay. I hope you understand how to print. यहाँ पे जैसे ही print command select करोगे, ये print open हो जाएगा options. यहाँ पे all pages, कौन से pages करना है, मुझे अगर 3 ही करना है तो will
will give the particular number. वन साइडेड, टू साइडेड, क्लॉटेड, ये आपको नहीं समझ में आएगा, जब आप प्रिंट करोगे तब भी ये पता चलेगा, ठीक है। अभी उसको मैं पोर्ट्रेट कर देती हूँ। साइज शुड बी A4, कस्टम मार्जिन ऑलरेडी हैव डन, सो जो होगा वही आएगा। अभी पेज सेटअप, यहाँ पे भी आप चेंजेस कर सकते हो। अगर आपको यहाँ पे प्रीव्यू देख के ये लगे कि यहाँ पे थोड़े हम कम करें तो आप यहाँ से भी कर सकते हो। पेपर भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, लेआउट भी यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, I hope you understand. Okay, so I have started the revision, so do watch it properly and try out at your home. Okay, so after the chapter explaining, we'll do exercises, okay, one by one. Okay, see you at next video. Till then, goodbye, stay safe.